Hello students, today we will talk about few aspects, few basic concepts in literary history. First of all, we will talk about Renaissance. Now what is Renaissance? Renaissance is a French word meaning rebirth or revival or reawakening. If we talk chronologically, this period began in the late 14th century in Italy, and then it spread to other European countries, and it culminated in the 16th century in England. This is marks the humanistic revival of classical art, literature, architecture, painting, sculpture, learning. So, marking the transition from the period of Middle Ages to enlightened modern times. Now, Italy was the center of Renaissance, because I told you that this period started in Italy. It was a golden period of Italian history characterized by innovation, imagination, creativity. So it was a time when Europe's classical past was revisited, it was reinvigorated. So the study of ancient Greek, Roman art, and literature called humanism or the religion of humanity was the hallmark of this age, which was in sharp contrast with the Middle Ages, which as a historical period had an inclination towards divinity. Middle Ages में क्या था? There was an inclination towards divinity. Humanism brought about a revolutionary change in the lives and outlook of the people, shifting the pivot of thought from religion just to secular. Human beings were placed at the center of life's phase. The vibrant waves of Renaissance soon spread to other European nations, and that increased the indigenous development of French Renaissance. Petrarch, Boccaccio were the torch-bearers of Italian Renaissance. They thrilled the people by reviving the glorious past of Italy. है ना? इटली के पास्ट की बातें कर करके वो लोगों को बहुत रोमांचित करते थे, लोगों का एक इंटरेस्ट क्रिएट करते थे through their works. Imagination of people was fired by Aristotle, Aristotle's Orland Furioso, Tasso's work, Machiavelli's The Prince, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, they are who? Michelangelo और Raphael कौन है? पेंटर्स हैं. तो अगर हम बात करें तो रेनेसा क्या है? रेनेसा में क्या है कि एक रिवाइवल है, एक रीबर्थ है ना, एक वेव चली सीखने की हर फील्ड में, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, है ना. तो दैट थिंग वाज देयर. तो माइकल एंजलो और रेफल बहुत अच्छे पेंटर्स हैं. दे वर आल्सो सेलिब्रेटेड, है ना. तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट मिली, एक तरह से लोगों का एक एस्थेटिक इंटरेस्ट अराइज किया गया. So this period was a remarkable for outstanding discoveries also. साइंस के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, है ना. So this period is marked for scientific discoveries, inventions in the field of science also. Potentially powerful innovations such as mariner's compass, telescope, clock, spectacles, gunpowder, paper brought about a revolutionary change in every sphere of people's life. The invention of printing press by Jonathan Gutenberg of Germany made access to books, है ना. प्रिंटिंग प्रेस जब आ गई तो उससे क्या हुआ कि पब्लिकेशन इजी हो गया, लोगों को बुक्स इजीली अवेलेबल हो गई, इवन फॉर कॉमन पीपल द बुक्स वर इजीली अवेलेबल एंड नॉलेज स्प्रेड.
रैपिडली। नेचुरली जब बुक्स आ गई, सब कुछ लिखा हुआ आपको बुक्स में अवेलेबल है, एक कॉमन मैन को भी अवेलेबल है, तो क्या होगा, एक नॉलेज जो है वो स्प्रेड होने लगी। द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस वाज येट अनदर माइलस्टोन इन द स्फीयर ऑफ एक्सप्लोरेशन। सो इस तरह से क्या है, एक एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट हो गया, एक इंटेलेक्चुअल फर्वा, है ना। And it is that atmosphere inspired people further to undertake such adventurous expeditions. And then the decline of feudal system, the growth of commerce, radical transformation in church were other prominent events of this period. All these events led to an intellectual reawakening or rebirth of Europe after a long period of cultural decline and stagnation. The sparks of Renaissance fire, which was ignited in Italy, है ना। तो वो जो रेनेसां की जो चिंगारी इटली में शुरू हुई थी, अब वो इंग्लैंड में पहुंच गई। कब पहुंची इंग्लैंड में? इन द लेट 15th century and it continued till 17th century. It was a cultural and artistic movement. Literature, music were the art forms which were of prime concerns of English Renaissance. English Renaissance fomented the intellect of versatile poets, dramatists, prose writers. सभी को अफेक्ट किया, है ना। रेनेसां पीरियड ने सभी क्रिएटिव आर्टिस्ट को अफेक्ट किया। The period produced a galaxy of versatile writers whose literary talent remains unsurpassed even today. And some important figures were Thomas Sackville, George Gascoigne, Philip Sidney, Michael Drayton, Samuel Daniel, Thomas Murray, Francis Bacon, White and Surrey. उन्होंने इंग्लिश सोनेट स्टार्ट किया था ना। They did pioneering work in the field of poetry. White is credited with introducing the sonnet form to English literature, and Surrey introduced the blank verse. Sonnet and blank verse later attained the refinement in the hands of Marlowe and Shakespeare, है ना। मार्लो और शेक्सपियर के हैंड्स में फिर वो सोनेट फॉर्म जो है फर्दर रिवाइज हुई और डेवलपमेंट हुआ। एडमंड स्पेंसर wrote the legendary verse epic, The Fairy Queen, which had a lasting impression on contemporary literature. Then English literature was now in the safe hands of vivacious playwrights like Christopher Marlowe, William Shakespeare, Ben Jonson, popularly known as the university wits, philosophers, intellectuals like Thomas Murray, Francis Bacon. They associated the advancement of science. Murray wrote Utopia in Latin. 1516 में उन्होंने यूटोपिया लिखा, later translated into English in 1551. In Utopia, he gives an account of imaginary discovered country. This theme is much in harmony and Renaissance spirit. Philip Sidney produced the literary treatise The Defense of Poesy, pastoral romance Arcadia. As Erasmus wrote The Praise of Folly, which is a powerful satire on the ignorance and corruption of contemporary times. Lydes Hughes is a prose romance which is credited with a new innovation in writing style. Queen Elizabeth, who was trained by Roger Ascham, was herself a product of English Renaissance. Even Queen Elizabeth. She wrote poems like On Monsieur's Departure. So many writers were there whose talent developed, flourished. So Renaissance period provided an environment
to the creative artists to give their best, है ना। तो रेनेसां पीरियड, रेनेसां जो कि एक वेव चली थी लर्निंग के लिए हर फील्ड में, जो कहाँ स्टार्ट हुई, इटली में स्टार्ट हुई, 15वीं सेंचुरी के लास्ट में वो इंग्लैंड में पहुंची, ठीक है, और 17वीं सेंचुरी तक रही, है ना। तो एक एनवायरनमेंट मिला सभी राइटर्स को, सभी क्रिएटिव आर्टिस्ट को अपना अंदर का जो टैलेंट है, क्रिएटिव टैलेंट है, उसका दी बेस्ट निकाल। I hope you must have understood what is Renaissance and who are the writers and what are the qualities of this period and how it affected literature and other fields. Next is Reformation. Reformation was again a 16th century movement aiming at the reform of Roman Catholic Church and for curbing the authority of Pope over the Church. तो रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन भी एक लिटरेरी मूवमेंट है एंड इट वाज देयर टू रिफॉर्म द चर्च, पोप का डोमिनेशन चर्च पे ना हो। So this movement was associated with the European Protestant Reformation, a wider religious and political movement. तो रिफॉर्मेशन क्या था? रिफॉर्मेशन एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट था। इन वेस्टर्न यूरोप कैथोलिक चर्च हैड बिकम पॉलिटिकली पावरफुल, ठीक है। द करप्ट क्लर्गी मैन एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर पीपल, करप्शन बहुत ज्यादा थी, तो करप्ट जो क्लर्गी मैन थे वो लोगों को कंट्रोल करते थे, है ना, बाय एक्सप्लॉइटिंग द रिलीजियस बिलीफ, धर्म के नाम पे वो जो क्लर्गी मैन थे वो लोगों का शोषण करते थे। बाय सेलिंग ऑफ इंडल्जेंस फॉर साल्वेशन, चौसर ने प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स लिखा, उसमें भी वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिलीजन उस समय पे जो था उसकी क्या कंडीशन थी, कि क्लर्गी मैन धर्म के नाम पे कैसे जो है लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे कोई भी किसी भी एनिमल की हड्डियां सी हैं और कहते हैं ये तो क्राइस्ट की है ना, तो इस तरह से तो जो क्लर्गी मैन है कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको वो करते हैं पिलग्रिमेज के लिए और अदर सच एक्टिविटीज। Churches became center of corruption due to increase in political power and accumulation of material wealth, है ना। पैसे की वजह से, पॉलिटिकल पावर की वजह से जो चर्च है वो एक सेंटर बन गई करप्शन का, ठीक है। दिस इंस्टिगेटेड एक्टिविस्ट्स लाइक मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन टू इनिशिएट चर्च मूवमेंट। तो कौन रिफॉर्मर आए? मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट, दिस मूवमेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट की फाउंडेशन मार्टिन लूथर किंग ने 1517 में रखी, ठीक है, with the publication of his book 95 Theses. Edmund Spencer, Sir Thomas More and other reformers, they also contributed substantially for reformation of English church through their writings, है ना। तो इन राइटर्स ने भी अपनी राइटिंग्स के थ्रू इंग्लिश चर्च को इम्प्रूव करने की वो की, कंट्रीब्यूशन किया। रिफॉर्मेशन रिजल्टेड इन द स्प्लिट ऑफ क्रिश्चियनिटी, रिफॉर्मेशन कब हुआ? क्रिश्चियनिटी को स्प्लिट कर दिया गया, कन्वर्टेड मच ऑफ नॉर्दर्न यूरोप टू प्रोटेस्टेंटिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म बिलीव्ड इन अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन थ्रू इंडिविजुअल फेथ। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? रिफॉर्मेशन कैसे किया कि क्रिश्चियनिटी को डिवाइड कर दिया, बांट दिया, जिसमें कि जो नॉर्दर्न यूरोप है उस वाले पार्ट को क्या कहा कि यहाँ के जो लोग होंगे वो प्रोटेस्टेंटिज्म को मानेंगे। और प्रोटेस्टेंटिज्म का मतलब क्या है
कि व्यक्ति की जो साल्वेशन है, किसी भी व्यक्ति की जो मुक्ति होगी वो उसके व्यक्तिगत विश्वास से, व्यक्तिगत आस्था से होगी, है ना। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हर जने के लिए क्या है कि वो अगर अपनी मुक्ति चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसको बाइबल पढ़ना होगा, ठीक है। दिस एनकरेज ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, तो इससे बाइबल की ट्रांसलेशन होने लगी इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, आपकी लोकल लैंग्वेज में उस एरिया की लोकल लैंग्वेज में जो बाइबल है उसका ट्रांसलेशन होने लग गया। एंड इट इम्प्रूव द लिटरेरी रेट्स इनॉर्मसली। सो दिस आल्सो चेक द पावर एंड रोल ऑफ क्लर्की, तो इस वजह से क्लर्की मैन का रोल जो है अब कम हो गया। हु अदरवाइज एक्टेड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन मैन एंड हिज अटेनमेंट ऑफ सल्वेशन, है ना। अब चौसर का प्रलोभ पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ाते हैं कि भैया कैसे जो क्लर्की मैन है वो बीच का मीडियोकर होता था व्यक्ति को सॉल्यूशन दिलवाने, कि वो बोलता था कि इतना पैसा चढ़ा दो, इतना दान कर दो, इतना आप क्लर्की मैन को दे दो तो आपको सॉल्वेशन मिल जाएगी। अब प्रोटेस्टेंटिज्म में क्या किया, रिफॉर्मेशन में क्या हुआ कि प्रोटेस्ट डिवाइड कर दिया, और प्रोटेस्टेंटिज्म का मतलब है कि व्यक्ति की सॉल्वेशन उसकी अपनी पूजा से होगी, उसकी अपनी आस्था से होगी, उसकी अपने विश्वास से। तो अब क्लर्की मैन का रोल जो है वो कम हो गया, है ना। सो द स्प्रेड ऑफ दिस मूवमेंट abolished papal authority and corruption of clergy. So it also helped in the decline of feudalism. feudalism भी कम हो गया इससे। Most importantly, it laid the foundation of intellectual progress by awakening the common man. तो इस तरह से आप एक आम आदमी को जागरूक कर रहे, है ना। तो आम आदमी को अवेकनिंग से, आम आदमी की अवेकनिंग से क्या हुआ, जो है इम्प्रूवमेंट हो गई, रिलीजियस एक एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हो गया, है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली न्यू नॉलेज एंड न्यू आइडियाज प्रोपोगेटेड, तो इस सबसे क्या हुआ, नए आइडियाज भी प्रोपोगेट हुए, उनका प्रचार प्रसार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, ग्रेट लिटरेचर वाज रिटन, है ना। विलियम टिंडेल ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश फ्रॉम ग्रीक एंड हेब्रू, ग्रीक और हेब्रू लैंग्वेज से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसको, बाइबल, है ना। एडमंड स्पेंसर रॉट द फेरी क्वीन टू एक्सप्रेस हिज डिजायर टू रिफॉर्म रोमन कैथोलिसिज्म। सर थॉमस मुरे थ्रू हिज वर्क यूटोपिया, है ना, इमेजिन एन आइलैंड वेयर ऑल रिलीजन्स कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली एंड टॉलरेंस इज प्रैक्टिस, जहाँ पे सहनशीलता, समानता, एक आपसी तालमेल होना, ये वाले मैसेज दिए जा रहे हैं। ऐसा थॉमस मुरे ने अपने वर्क यूटोपिया में दिखाया, जिसमें वो इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा एक आइलैंड है जहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये भी एक लिटरेचर में, लिटरेरी हिस्ट्री में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है, रिफॉर्मेशन। सो वी हैव डिस्कस्ड रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसां क्या है, रेनेसां इज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग इन एवरी फील्ड। I hope you must have understood uh, these two terms. है ना? Next we will talk in next video. Thank you.